Good morning, everyone. Very good morning, sir. Good morning, sir. Sir, Good happy morning, Haryali. sir. Good morning, sir. Good morning. बेटा हैप्पी क्या विश किया था अभी किसी ने? Sir, happy Haryali Teej. अच्छा अच्छा, थैंक यू, सेम टू यू बेटा. Sir, हरियाली तीज. मतलब बेटा परिधि बताओ क्या होता है? Sir, Haryali निशु पूछ रही है. पूजा जाती है और आटे के भगवान जी बनाए जाते हैं और हमारी जो मम्मी है वो व्रत रखती हैं और शाम को वो मतलब उनका खुल जाता है व्रत. ये होता है इस दिन. निशु आपके घर पे सेलिब्रेट होता है? सर इस बार नहीं होगा. अच्छा ओके. स्टार्ट करते हैं. आगे बच्चे सारे. Sir, चलो बेटा शुरू करते हैं. So we sorry. So who is on 6.2? Who is? Which class is on 6.4? That is some other class, not seventh. Okay, sir. Sorry. Sir, we have studied for interior angle. Yes, sir. Co-interior angles. We have studied the four properties of parallel lines and transversal. चार properties हम लोग पढ़ चुके हैं. These are the only four properties that you have to study. अभी मैं आज थोड़े बहुत questions मतलब exercises start करूँगा, but before starting the exercise, let me just explain how to use these properties. Sir? We have yes. So there will be no co-exterior angle. No. Only co-interior. हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. चाहो तो बना सकते हैं को एक्सटीरियर भी. Sir, today I will be closing my camera because whenever I am opening my camera, I am not able to see it. नो प्रॉब्लम. I have drawn two parallel lines and a transversal. green color वाली transversal है. मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि how to use these properties. Okay. Properties को कैसे use करते हैं ये सीखेंगे आज. Fine. All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I am just marking an angle here. Suppose this is 60 degrees. And अभी मेरे से मान लीजिए बोल दिया जाए कि find the following angles. कौन से? X find करना है मान लो, Y find करना है, and suppose Z भी find करना है. मान लीजिए ये तीन angles find करने हैं, X, Y, Z. So how can I find all the three angles X, Y, and Z? So finding these angles, we will be using properties which we have studied yesterday. Yes, sir. I hope you all attended the classes yesterday. Everyone has understood all the Yes, sir, properties. attend. Four Sir, today properties Kibla will not. be able to join because Yes, sir. Sir, because her mother means her mother is sick, maybe. Yeah. Sir, she is in the hospital. मतलब उसकी mother well नहीं है. अरे क्या हो गया? What happened to her mother? Sir, she has I an don't OT. She is not well. Sir, OT में. अरे So, how? What happened to her?
So she was not telling me the whole thing. Yes. I Yes, don't want to let her to me also. tell that. So she just tell that I will not be able to attend the classes because my mother is not feeling well and she will be naughty. Let's hope everything is fine. For everything is fine. Okay, so this angle A is equal to suppose 60 degree. This is given. अब ये A की हेल्प से हमको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इट इज गिवन दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, ये पैरेलल लाइंस हैं, येलो वाली जो लाइंस हैं. देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं. वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज. सबसे पहले चलो मैं x निकालता हूँ. हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे? कैन एनीवन टेल? ट्राई बताइए x की वैल्यू क्या है? Second, so we should minus 180 from 60. So 60 from 180, and then we will find the value of x. नहीं, here the value of x is equal to a. x and a are equal. Why? आपने पढ़ा है when two angles which are on the same side of the transversal, x और a को देखिए ध्यान से, दोनों एंगल्स सेम साइड में हैं ट्रांसवर्सल की, सेम साइड में है, और एक एंगल इंटीरियर में है, दूसरा वाला एक्सटीरियर में है. ये सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऐसे ही होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक इंटीरियर में दूसरा एक्सटीरियर में और दोनों सेम साइड में ट्रांसवर्सल की. आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. जो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको नोट कराया है उसके एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए हैं. फिगर को देखिए जो फिगर बनवाया है, और एग्जाम्पल्स को पढ़िए कौन कौन से पेयर्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा. सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्स एंड ए. ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है, जस्ट टू एक्सप्लेन मैं ये सब बता रहा हूँ कि कैसे यूज करनी है प्रॉपर्टीज. दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. रीजन भी लिखना जरूरी होता है. एक्स और ए आपके इक्वल हैं. सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्रीज. बिकॉज ए 60 है तो एक्स भी कितना हो गया? 60 डिग्रीज. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. एक दूसरे के इक्वल होते हैं व्हेन द लाइंस आर पैरेलल. ऑब्वियसली जब लाइंस पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई मैंने एक्स को ए के इक्वल लगाया है. चलिए अब y कैसे निकालेंगे? कैन यू ट्राई and can you tell the property and how to find y? So the property of y is alternate interior angle. Can you tell me again, Sarah? So alternate interior angles. A and y are alternate interior angles. Yes, sir. And what is the property of alternate interior angles? Sir? So the Sir? property of Yes. Sir, in between your voice is breaking, so I'm not able to hear what you are saying. So can you please say again? Means what you have tell in the board. sir, if the lines are parallel, so sir, the each pair of alternate angles are equal. Yes. So that means y की वैल्यू कितनी हो गई? Sir, 60 degree. 60 on. सानिया, मैंने ये बताया था a और x जो हैं वो corresponding angles हैं. a and x ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है, एक एंगल इंटीरियर में है, दूसरा एक्सटीरियर में है, तो दे आर corresponding angles. ये दोनों अब ये corresponding है इसलिए ये दोनों इक्वल भी होंगे, बिकॉज corresponding angles इक्वल होते हैं. प्रॉपर्टी होती है corresponding angles की that they are always equal when the lines are parallel. तो इक्वल हो गए तो एक x की वैल्यू 60 आ गई. यस. Yes, sir. So I was absent tomorrow because yesterday because I have to just I was just went for the recording, so I'm not able to understand anything. You saw the recordings? No, sir. So I just came home around 4 or 5. So you went to the school maybe? No, sir. Nelson sir's house. Nelson sir के घर पे for the practice.
For the recording. फॉर द रिकॉर्डिंग, अच्छा सॉन्ग रिकॉर्डिंग, वो वैसे आई मीन Yes, sir. Studio वाला. स्टूडियो टाइप रिकॉर्डिंग। Yes. ओके, क्या बात है। सो कितने बच्चे गए थे? Sir, 11. 11 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सर ने कुछ खातिरदारी करी आप लोगों की? सर खातिरदारी, सर ने बहुत ज्यादा डांटा पहले तो, क्योंकि हम लोग सारे एक साथ ही गा पा रहे थे। पता नहीं क्यों, हम लोगों ने स्कूल में बहुत अच्छा गाया था, प्रिंसिपल सर को भी सुना दिया, लेकिन हम जब स्टूडियो में गए हम लोग पता नहीं इतना ज्यादा गंदा गा रहे थे। फिर सर ने हमें बहुत डांटा, फिर हम लोग अच्छा गाने लगे। हुआ, मैं भी यही ट्रिक तो यूज डांट के बाद सब लोग अच्छा करने लग जाते हैं। So मैथ्स even me. में। अच्छा, मैथ्स में अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो मैं भी बढ़िया करके डांटूंगा, फिर आप लोगों की मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। ये ट्रिक सर लगा माय के मम्मी इज देखो। ऑलवेज सेइंग, जब तुम्हें डांट लो तब तुम काम करने लग जाते हो, जब बिना डांटे तुम सीखते ही नहीं। मतलब काम करती है ट्रिक। चलो मैं भी ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं मौका ढूंढूंगा डांटने का। ओके सर, चलिए नो सर, No sir. ना। सब तो आपकी क्लास में कोई नहीं आएगा। सर No sir. बी बोरिंग। मैं डांट दूंगा, मतलब टीचर मतलब तभी तक अच्छा है जब तक वो डांटे ना। अगर टीचर डांट देगा तो बच्चे क्लास में नहीं आएंगे। वाह। नो सर। That नहीं सर, this पर ये is सच sense. है। नहीं सर, पर ये सच सर है। आप एक बार डांट के देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, No sir, no need. No sir, no need. जब हम लोग करें तब आप डांट दीजिएगा, अभी रहने तो दीजिए। नो ऐसी सर, पढ़ाई, नहीं नहीं नहीं। ऐसी पढ़ाई कर लो तो सो दैट मुझे डांटने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, तो रिकॉर्डिंग देखना निशु, तो आपको समझ में आएगा। और फिर एक काम और करना, वो कल वाली रिकॉर्डिंग देखने के बाद आज वाली भी देख लेना। ओके सर। ठीक है, अभी आज आप एंटरटेनमेंट के लिए क्लास में अपना बैठो, फिर भी नहीं, फिर भी ट्राई करो, समझ में जरूर आएगा। मैं बहुत कुछ बताता हूँ डिटेल में, हर क्वेश्चन में ही बताता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके, एंड प्लीज एवरीवन स्टार्ट योर वीडियोस। सर मी आल्सो So I'll not टेल be यू द able to रीजन। start because your Sir, I voice will is not be breaking. able Yes, I'm to. just opening my cam. Sir, I Excuse me, can't sir. see your screen. So I'll be opening in just some minutes because your voice is breaking in between. Okay, If I'm opening fine. right now. Sir, I'm not able to see your screen. Better maybe some because of some network issue. चलिए देखिए, x इक्वल टू आपको 60 डिग्रीज मिल गया। एंड y कैसे निकालेंगे? अब a और y को देखिए ध्यान से। एंगल a एंड y, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों है ये दोनों? बिकॉज a आपका राइट साइड में है ट्रांसवर्सल के, y लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, और दोनों एंगल इंटीरियर में है। तो ऑल्टरनेट साइड में है पहली बात तो, एक राइट में एक लेफ्ट में, और दोनों इंटीरियर में, दैट मींस दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो y और a दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो अगेन y की वैल्यू भी 60 आ जाएगी, y भी इक्वल टू 60 हो गया, y इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। अगेन रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आ जाओ z पर। z क्या होगा, कैसे निकलेगा? Sir, Z is consecutive interior angles. z एंड a, ये दोनों एंगल्स जो हैं z और a, ध्यान से देखिए, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है। दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है, यानी कि, और दोनों एंगल्स इंटीरियर में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, इंटीरियर रीजन में आ रहे हैं। यस सर। तो ऐसे एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स बुलाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स? क्या खास बात होती है उसमें? सर लिखवाया दोनों का है सम 180 आता है। वन सम इज इक्वल टू 180 a प्लस जेड। बेटा पढ़ाई नहीं करी आप लोगों ने विदाउट करी है। रिवाइजिंग? अच्छा, मतलब सारे बच्चों ने नहीं करी है, कुछ ने करी है।
2-3 ने रिवाइज कराया जो कल पढ़ाया था। यस्टरडेज क्लासेस वर वेरी 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 2000 बार वेरी लगा लेना अपने आप, और उसके आगे इम्पोर्टेंट लगा लेना। तो जिन बच्चों ने कल की क्लासेस नहीं करी है, प्लीज प्लीज सी द वीडियोस, रिवाइज जो मैंने कल पढ़ाया वो प्रॉपर्टीज को बार बार पढ़ के उनको रिवाइज करिए, उनको सीखिए, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और आगे की क्लासेस में भी तभी समझ में आएगी ज्योमेट्री, अदरवाइज ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। ये सारी चीजें जो हैं बेसिक्स हैं, 7th में आप जो पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री के बेसिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री के। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये सब आपको 7th में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, सर ये सारी चीजें आप 7th में पहली बार पढ़ रहे हैं, और यही सारी चीजें आगे तक आपको कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी। और जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी क्लास 7th में, तो आगे की क्लासेस में ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज समझ में आ गई, अगर 7th में समझ में आ गई ये सारी चीजें, तो ज्योमेट्री उतनी ही ज्यादा इजी लगेगी। अगर आप समझ लेंगे 7th क्लास में, तो आपको आगे की क्लासेस में ज्योमेट्री सबसे इजी पोर्शन लगेगा मैथ्स का। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी बताइए। यस सर। Sir, we are attending the classes. Okay, Sir, we sir. have If to take Nishu is not able to attend, so Nishu will see the recording. But some students are those who can means if this recording we are seeing, it's not means it's just looking boring type because we can't say anything. And sir, why you are not scolding them? Attend the classes. This is compulsion. If you will scold them, it कुछ तो impact नहीं बेटा, पड़ेगा मैं ना. निशु को कैसे मैं स्कूल करूं? बेचारी एक तो गाना गाने गई है Sir, स्कूल के निशु को लिए। कौन कह रहा है? नहीं मतलब जो Sir, भी not बच्चे। Nishu is very good. नहीं Nishu can नहीं see the recording and understand all the things. I'm talking about many people, many students which are not attending the classes. Many boys are there. अब क्या कर सकते हैं, जिनका पढ़ने का ही मन Sir, नहीं है। I also attending as a every class. I was present on the sir yesterday's Some- class also. Some of Arnab the class. है मैं उनको boys नहीं कह रही हूँ, जो लोग अच्छा नहीं है उनको कह रही हूँ. ठीक है, लेट्स एंड दिस टॉपिक। मैं बोल दूं लास्ट में, फिर खत्म कर देते हैं ये टॉपिक। जो बॉयज नहीं कर रहे हैं क्लासेस अटेंड, मैं उनको घर से पकड़ के तो नहीं कर सकता हूँ ना, मैं उनको पर्सनली जा करके फोन करके मैं डांटूंगा, है ना? ऑब्वियसली बात है। जो बच्चे कर रहे हैं वो अपने भले के लिए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा होगा कि भाई व्हाई द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लासेस। जैसे कुछ बॉयज करते हैं, गर्ल्स तो ऑलमोस्ट सारी करती हैं, 1-2 गर्ल्स को छोड़ करके शायद। तो बॉयज जो भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट एंड दे आर, जैसे श्रेयांश करता है, ही इज डूइंग ऑल द क्लासेस, एंड 1-2 बच्चे और हैं, सो दे आर डूइंग, और उनको समझ में भी आ रहा है कि व्हाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जो नहीं कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, है ना? नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। समझाया हो नहीं जाता है जिस समय मदर यूज्ड टू से समझाया हो नहीं जाता है जो समझते हैं। सही बात है, जो लोग समझ, जिनको सर, जो समझ, लोग अटेंड नहीं करते, तो आपने उनको मार्क्स फुल दिए हैं या फिर कम कर मैं दिए हैं? फुल क्यों दूंगा मैं उनको? Why would I give them full marks? I have deducted their marks. Yes. आप लोगों को मैंने It is 5 मार्क्स अटेंडेंस के एंड नोटबुक के, ये सब चीजों के 5 आपने देखा होगा मिले हैं Yes, sir. रिपोर्ट कार्ड में अपने। तो बाकी जो लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ी मिलेंगे फुल मार्क्स, उनको नहीं दिए मैंने। उनको आउट ऑफ 10 मुश्किल से 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे मिले हैं, किसी को शायद 7 मिल गए होंगे। हाँ जी। सर आप कल आएंगे, परसों आएंगे, या परसों के परसों आएंगे? परसों के परसों क्या होता है? मतलब सर परसों मे बी ऑन मतलब सर मैं कल नहीं भी सर, आऊंगा, वैसे कल भी आऊंगा। देयर इज अ मीटिंग। सर वो शूट नहीं सर, शूटिंग के लिए, शूटिंग के वीडियो लिए टीचर्स को भी आना है क्या? यस सर आना है। अच्छा, सर टीचर्स यस सर, सर वही तो बात है, वही तभी तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। पता नहीं बेटा, अभी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में कि हम लोगों को, गरीबों को भी जाना है शूटिंग के लिए। सर अगर आ जाए तो बताइएगा। जी मैं बताऊंगा आपको। एंड आई थिंक टुमारो आई हैव टू गो टू स्कूल फॉर द मीटिंग। देयर इज अ मीटिंग विद द प्रिंसिपल, सो कल सर तो हमें जाने भी जाना है कल। अच्छा, वेरी गुड। सो लेट्स होप वी मीट टुमारो। सर हाँ आप जी, कितने बजे आएंगे? आई विल कम एट 2:30। यस तो बेटा, सर नहीं yes. मिल पाएंगे। सर फिर आप आकर थोड़ा सा टाइम बचे तो आप निश्चित को पढ़ा दीजिएगा। सॉरी क्या चीज?
निशु को पढ़ा दूं मैं। हाँ, अगर हम लोग मिल गए स्कूल में तो मैं निशु को ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है? नो सर, नहीं मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर। हाँ जी बेटा, श्रेयांश बोलो। Sir, I could understand the co-integer angle. को इंटीरियर एंगल्स आपको नहीं समझ में है? देखिए कोई बात नहीं, इजी है। को इंटीरियर एंगल्स बेटा वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं, या तो दोनों एंगल राइट में होंगे, ये राइट साइड है ट्रांसवर्सल की, तो आप एंगल ए और एंगल जेड को देखिए, दोनों राइट साइड में है। ये लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल की, दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है? तो या तो दोनों राइट में होने चाहिए या दोनों लेफ्ट में होने चाहिए। यहाँ पर ये ए और जेड दोनों एंगल्स राइट साइड में है, और दोनों एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज द इंटीरियर रीजन, पैरेलल लाइंस के बीच वाला जो रीजन होता है। तो ये दोनों एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में ही आ रहे हैं, एंगल ए एंड एंगल जेड, एम आई राइट? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच Yes, में है। sir. और ये एंगल एक्स को देखिए, एक्स जो है वो पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है, एक्स बाहर है, तो वो रीजन जो है जहां पर एक्स है वो एक्सटीरियर रीजन कहलाएगा। ये नीचे वाला जो रीजन है, दिस इज आल्सो एक्सटीरियर रीजन। ऊपर का रीजन और नीचे का रीजन है, ये एक्सटीरियर होगा। इंटीरियर रीजन कौन सा हुआ? जो पैरेलल लाइंस के बीच में। सो को इंटीरियर एंगल्स, को वर्ड का जो मतलब है वो होता है सेम साइड, को वर्ड का मतलब, ठीक है? और को इंटीरियर यानी कि पैरेलल लाइंस के बीच में, सेम साइड पैरेलल लाइन के बीच में, को इंटीरियर। समझ में आ गया? को इंटीरियर सेम साइड में होंगे, पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। तो ए और जेड आर को इंटीरियर एंगल्स। और प्रॉपर्टी क्या होती है को इंटीरियर की, कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। देखिए मैंने लिखा है, आप ए और जेड को ऐड करेंगे, 1 सेकंड रुको बेटा। सर बोले नाइस लाइन। ए और जेड को, आप ए और जेड को जब ऐड करेंगे तो सम इक्वल टू 180 पुट कर देंगे, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो जब आप ए की वैल्यू यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू 120 आ जाएगी। समझ में आ गया श्रेयांश? Yes, sir. वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? ऑल ऑफ यू समझ में आ गई ये सारी Sir. चीज? हाँ जी। यस सर। Sir, the word you written alt dot int. Sir, what's the full form of that? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा कल की क्लास करी थी आपने श्रेयांश? Yes, sir. No, sir. I just didn't revise all that. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है? Okay, sir. ये जो मैंने निकाली है अभी अभी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज, ये मैं और तरीके से भी निकाल सकता हूँ। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो टू फाइंड इट। अगर मान लीजिए सिर्फ मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स मैंने कैसे निकाला था? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज किया था मैंने यहाँ पर, है ना? एंड एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी। देखो इसे मैं मार्क कर देता हूँ। एक्स मैंने निकाला था, एक्स इक्वल टू ए, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये निकाली थी अभी हमने। तो एक्स हमें पता चल चुका है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो y और z, अब जरूरी नहीं है कि मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल का यूज करके निकालूं। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, जो आपने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़े थे। आपने पढ़ा था जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। याद आए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाले। तो y और x को मैं इक्वल बोल सकता हूँ बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x की वैल्यू 60 थी, y की कितनी आ गई? 60 आ गई, बिकॉज x और y इक्वल हो गए। तो y अगर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर से निकालूंगा तब भी 60 मिलेगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकालूंगा तब भी 60 मिलेगा। सेम वैल्यू आ रही है, देख लीजिए, ऑटोमेटिकली अपने आप सेम वैल्यूज आएंगी। और अगर मुझे z निकालना है मान लो, और मैं मान लीजिए को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज करना चाहता हूँ, तो एक और तरीका है z निकालने का। आप x प्लस z दोनों का सम इक्वल टू 180 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज ये दोनों एंगल एक लाइन के सेम साइड में। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं? ये ट्रांसवर्सल की बात कर रहा हूँ। ट्रांसवर्सल की सेम साइड में दोनों एंगल है, और एक लाइन के सेम साइड में जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम 180 होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स याद आया? ये दो एंगल ऐसे,
लीनियर पेयर। Yes, तो ये लाइन देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दो एंगल दिख रहे हैं एक्स और जेड। अगेन चाहे तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो भी मेरे को z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 120 डिग्री मिल जाएगी। 60 प्लस z इक्वल टू 180। x हम पहले ही निकाल चुके हैं 60, z कितना आ गया 120 डिग्रीज। ठीक है, तो एनी मेथड यू कैन यूज, यू विल गेट द सेम आंसर। आपको अब समझ में आ रही है मैथ्स में सारी चीजें सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर एक कॉन्सेप्ट यूज करें या दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने वहां तो कुछ और पढ़ा था तो यहाँ पे कुछ और हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी चलिए। So you सो want the latest news? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? Sir, Messi is quitting TCS job. मेसी इज क्विटिंग टीसीएस जॉब? Yes, sir. जो उसे पेंडेमिक में मिली थी. सही में? Yes, sir. And so he cried a lot. Sir, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? नहीं मैंने नहीं पढ़ा सच में। मेसी को टीसीएस में जॉब मिला था Yes, sir. एंड वो टीसीएस हमारी इंडियन कंपनी ने उसको जॉब ऑफर की थी। सर हमारी इंडियन क्यों करेगी? सर उन लोगों ने करा था and he is Actually- just quitting that job. टीसीएस तो इंडियन कंपनी है बेटा। Sir, let it be, sir. तो वैसे मैंने सुना है मेसी इज क्विटिंग बार्सिलोना। Yes, sir. बार्सिलोना क्विट कर दिया मेसी ने, मतलब Yes. Yes, sir. He is just like, I just want to just spend my rest of my life with parents, children, and wife. नहीं he is going to join some other club I think, not Barcelona। सर वो बहुत stupid हरकतें नहीं कर रहा है. थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है, रोनाल्डो टाइप का नहीं है वो। सर ऐसा मत बोलिए आप, ऐसा नहीं कह सकते. रोनाल्डो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, मैसी Yes, अच्छा है. sir. Sir, yes. No, sir. Yes, sir. देखो मेरे से लड़ाई कर लेना बाद में चाहे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि रोनाल्डो इज बेटर, मच No, बेटर। sir. ऐसा Sir, नहीं. also. No, sir. No, Sir, sir. I No, support sir. you. Sir, I don't agree. किसी दिन लड़ाई Sir, I करेंगे totally agree you. No, sir, I don't agree you. वी विल फाइट someday on this topic, not today। Okay, sir. ओके तो मैं जो रोनाल्डो वाले हैं वो सब मेरी टीम में आ जाएंगे, और मेसी वाले जितने हैं वो सब अपोजिट टीम में, एंड देन वी विल हैव अ मैच। Sir, I'm there with you. वेरी गुड। Sir, I am on. देखेंगे Sir, किसकी whom टीम we ज्यादा are बड़ी। talking about? बेटा Sir, ये गलत है, मैसी दो ज्यादा अच्छा ऐसी है. आम से लोग हैं दुनिया के, मेसी और रोनाल्डो। शायद आपने इन आम से लोगों का नाम सुना हो, बहुत कम पैसा कमाते हैं बेचारे, एक ही बॉल के पीछे भागते रहते हैं जिंदगी भर। ऐसी दो लोग हैं बड़े Sir, how कॉमन। can Sir, you even maybe say you like are that? very But, opposite. है बेटा? Sir, maybe you are saying opposite. नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, पूछ लो बेटा। ये दोनों लोग एक ही बॉल के पीछे नहीं भागते रहते हैं। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो हम मेसी और रोनाल्डो वाले एक ही टीम के हो गए, सानिया दूसरी टीम में हो गई। एक्सरसाइज Sir, I'm not in 14A, anyone's team because I don't know anything. क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बेटा, ड्रॉ द फिगर, ऑल ऑफ यू विल हैव टू ड्रॉ द फिगर इन ऑल द क्वेश्चंस। फिगर बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन स्टार्ट करें। Sir, I have Sir, यस सर मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन की तरफ हूँ. मैं किसकी तरफ हूँ? सॉरी, क्वेश्चन 1 की तरफ हूँ। सर क्वेश्चन की तरफ हूँ. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। So there is no A written in the exercise. कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ 14A। बिना ए के मजा नहीं आता। एक्सरसाइज 14 लिखने में क्या मजा आएगा, Yes. है ना? Sir, today is Priti ma'am is present. Priti ma'am is present today। Yes, sir. आज बहुत लकी Because she डे has था. sent link. वाह क्या बात है। क्योंकि सर पलक मैम का पीरियड भी था, सेकंड पीरियड, एंड नाउ स्मृति मैम.
और सर आपका भी है, आपका तो रोज ही अच्छा, होता नहीं है। मेरे तो रोज ही होता है ना भाई, ये कोई खास बात थोड़ी है। तो ये मेरा नाम सबसे लास्ट में आया, ये मैंने नोट कर लिया, वो भी ऐसे। और हाँ, आपका भी तो ऐसे करके आया, वो भी मैंने नोट नो कर नो लिया। नो, आपका तो होता ही रहता है ना, हम आपसे तो बात हाँ करते रहते हैं, पलक मैम से भी होती ना। यस हाँ। सर, हम जरूर बात करते हैं। तो स्मृति मैम की क्लास में हम कभी कभार ये बोलते हैं सर दैट व्हेन वी आर जॉइनिंग रसिक क्लास इट्स वेरी फनी। अच्छा, तो मैम ने क्या कहा फिर? Ma'am only smile. Ma'am doesn't open her camera, na, so we can't see ma'am reaction. अच्छा, मैम वो कैमरा ओपन नहीं करती है? कितनी गलत बात है, टीचर्स को Ma'am, हमेशा कैमरा sorry. ओपन करना चाहिए। सर हु इज सेइंग, Sir, you have हु Sir, इज सेइंग? open your camera. Sir, क्वेश्चन open नंबर your 1। camera. क्वेश्चन नंबर 1, बेटा यहाँ पर हमको एंगल 5 की वैल्यू गिवन है 70 डिग्रीज। एंगल 5, ये एंगल का सिंबल होता है, ये बनाया ना मैंने 5 से पहले, देखिए दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। एल बनाते हैं एल, लेकिन वो एल का जो वर्टिकल वाला डंडा है उसको टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला okay, डंडा सीधा ही रहता है, वर्टिकल वाले डंडे को टेढ़ा कर देते हैं एल के। सो दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। तो एंगल 5 हमको दिया हुआ है 70 डिग्रीज, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, उल्टा 7 बना दिया, ये भी बोल सकते हो। जस्ट अ मिनट, होल्ड करो, कोई आया है बेटा? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ये हमको गिवन है, लिख लीजिए गिवन। अब हमसे कह रहे हैं, बहुत आसान सी चीजें पूछ रहे हैं, एंगल 1 फाइंड कर लो, एंगल 3 फाइंड कर लो, 4 और 8 फाइंड कर लो। देखिए, ऐसा कुछ हम अभी कर चुके हैं, मैंने आपके साथ जो अभी एग्जांपल एक डिस्कस sir, किया can था। we do it our own? सॉरी, कैन यू? Sir, can we do it our own? मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको चांस दूंगा करने का, ठीक है। एक्चुअली आई विल हैव टू टेल ऑल द स्टेप्स ना, कि कैसे कैसे लिखना है, क्या करना है, बिकॉज ऑफ दैट। Sir, maybe Sarah already done this chapter because Sarah knows many things. No, sir. नो शी Sir, I am on the algebraic. Sir, I am on the algebraic questions. Sir, just revising. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड एंगल 1? बेटा देखो, एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए ध्यान से, हमको एंगल 5 पता है, तो एंगल 5 की वैल्यू पता होने से मैं एंगल 1, एंगल 2, सॉरी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 8 सब निकाल सकता हूँ। सबसे पहले एंगल 1 पे देखिए, फोकस करिए, 5 और 1 में क्या रिलेशन है? एंगल 1 एंड 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी अभी हमने सीखा था, करस्पॉन्डिंग Sir, एंगल्स आर ऑन द, corresponding. यस, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, एंड दोनों एंगल्स जो होते हैं वो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर में होता है, तो ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Yes, sir. And then one also will be Yes, 70 sir. degree. यस, रीजन लिख लीजिए प्लीज, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेरा मतलब है बहुत की पावर भी बहुत लगा लीजिए, उतना जरूरी है, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्रीज मिल गया हमको, वेरी गुड। इसके बाद एंगल क्या निकालना है? 3, एंगल 3 पे फोकस करिए, बताओ बेटा एंगल 3, कोई भी बच्चा बता देगा? Sir, can I? Sir, Yes. alternative Sir, interior angles. alternate interior angles. Alternative. कौन कौन से एंगल्स, कौन Sir, कौन से? sir, Sir, 3 and 5. एंगल 3 5, एंड 6, 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कमाल कर दिया, Alternative interior. एक्सीलेंट। and sir, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो देखो मैंने दोनों को इक्वल लगा दिया। एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 70 डिग्रीज आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंगल 4 निकालना है, बताइए। sir, can I? चलिए Sir, सारा, 4 are consecutive interior angles. हाँ शॉर्ट में बोला करो सारा, वरना ये बच्चे भी Yes, sir. बेचारे Co-interior. Sir, Co-interior. co-interior angles. ठीक है, एंगल 4 एंड 5 आर को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 4 और एंगल 5 का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों लगा रहा हूं मैं 180? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स
का सम 180 होता है। हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। सो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 पुट कर दिया। एंगल 4 हमको नहीं पता है, फाइंड करना है। एंगल 5 की वैल्यू हमको पता है, 70 पुट कर दी। 70 पुट कर दी। अब ये 70 डिग्री जब आरएचएस में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो आरएचएस में जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस 70। सो एंगल 4 की वैल्यू आ गई 110 डिग्रीज। एनी डाउट टिल हियर? नो नो सर। सर। एंगल 8 कौन No, बच्चा sir. बताएगा? सर कैन आई? सारा चलो देखते हैं और ट्राई करते हैं कि कोई और दे रहा है आंसर। नहीं देगा तो सारा से पूछेंगे। ट्राई करो बेटा, कोई बात नहीं, गलत हो जाए नो प्रॉब्लम। मैं वैसा टिपिकल टाइप का खड़ूस टाइप का टीचर नहीं हूँ। आपका आंसर गलत होगा तो मैं आपको घर आ करके 2 थप्पड़ लगाऊंगा फिर वापस चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सर कैन सर आई? थप्पड़ तो लग ही नहीं सकते। Sir, can घर it आके be लगाऊंगा। alternate Yes, exterior? sir. So we should calculate 4 and 8. So sir, it will be बेटा 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 corresponding. बेटा सारा 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 खुद ही बता दो कि बेटा 2 मिनट रुको बेटा, इन लोगों को भी बेचारों को ट्राई करने दो, बच्चों को। आई नो सारा, यू नो, मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग्स। हाँ बेटा, ऑल ऑफ यू एंगल 8 ट्राई करिए कैसे निकलेगा। बेटा ट्राई करिए एंगल 8 कैसे निकालेंगे। Sir, alternative exterior angle 8 and 1. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं, चलो 8 and 1 दोनों एंगल बहुत अच्छी बात है। एक्सटीरियर में तो है एंगल 8 and एंगल 1, लेकिन ये ऑल्टरनेट साइड्स में नहीं है, ये सेम साइड में है, तो इनको हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं बोल सकते। हाँ जी, देयर आर मेनी वेज टू फाइंड द एंगल।